I would like to tell you some details about myself. So I graduated from Udaipur Medical College, and then I did my post-graduation also from there because I was the lead there. So it was very easy to get into obstetrics and gynecology at the time. So I finished my degree in 1995. And then I followed my husband to Dubai and Kuwait, and we came back to India in 2007. So it was a wonderful stint over outside, where I got to work with about 56 different nationalities, all educated in various places all over the world, like Canada, US, Germany, Australia, England, New Zealand. So there was a vast experience from various people, and I could pick a lot of things which possibly I wouldn't have gotten if I was practicing just in India. So it was a blessing that I got that kind of international exposure. So after returning 2007, I joined Columbia Asia Hospital, and then I was working there for 7 years. And then I moved to Apollo Cradle. I stayed there for 5 years. And now I'm with Cloud9 Hospital, which is the largest maternity chain of the hospitals in India. So right now there are about 25 centers and many more to come. So we have two centers in Gurgaon. One is in Sector 14, which is the old Gurgaon, and then there is the newer Gurgaon, which is Sector 47. So we've got two branches, and a third one is coming on the Golf Course Road. Regarding me, I have my own private clinic in the Palam Vihar area. The clinic is inside Dansal Plaza Mall and on the first floor. It's known as Dr. Chetna's Clinic. And I have my Instagram handle as Dr. Chetna Jain Gynecologist. So I repeat, Dr. Chetna Jain Gynecologist. And then there's a website called www.drchetnajain.com. www.drchetnajain.com. And I'll give you my telephone number in case you want to text me. So that's 9910907222. So it's 9910907222. So that's my personal number. If you want, you can WhatsApp me certain queries and I can answer you if you don't want to ask your queries on this common forum here, because it could be confidential or very private, which you wouldn't like to discuss, because there's a possibility of identity, though typically we are very careful. So you can still text me and I will ensure that I will not take any names. But in case you're hesitant, you can write to me privately. So now going forwards, a lot of you had this kind of query in mind that, during pregnancy, a lot of discomfort happens. And what do we do about it? So today we are going to talk on common discomforts of pregnancy. So it's very common to have certain common problems, simple things. Pregnancy के अंदर काफ़ी troubles होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देखें तो सब जी घबराता है, उल्टी होना है. सो जी घबराना, उल्टी होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है. अगर आपका जी घबराता है तो सबसे पहले तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं. जो सॉलिड खाना है और लिक्विड खाना है वो एक साथ नहीं खाएं. खाना खाने के बाद आप वॉक करें, एकदम से लेटे नहीं. अगर आपको लगता है कि आप बहुत थक गई हैं और आपका लेटना ज़रूरी है, तो आप 2-3 तकिए लगा के बेड से 30-40 डिग्री का एंगल बनाएं और फिर लेटें. और जब 2-3 घंटे बाद खाना आपको लगता है थोड़ा सा पच गया या हजम हो गया है, तो फिर आप स्लाइड करके नीचे शिफ्ट हो जाएं और तब आप थोड़ा सा फ्लैट लेट सकते हैं. लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कम से कम एक तकिया ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो मेंटेन रहे. इसके अलावा अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी जी घबराता है या उल्टी होती है, तो फिर हम आपको कुछ एसिडिटी का मेडिसिन भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को एसिडिटी की वजह से उल्टी होती है. तो अगर एसिडिटी ठीक हो जाती है, फिर भी अभी नॉशिया वॉमिटिंग रहता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं. टिपिकली ये डॉक्सिलामीन, पायरिडॉक्सिन, ये सब दिया जाता है. इससे काफ़ी हद तक आपका नॉशिया वॉमिटिंग कंट्रोल में आ जाता है. इसके अलावा एक रिस्ट बैंड भी आता है, सी सिकनेस रिस्ट बैंड बोलते हैं इसे. सी सिकनेस रिस्ट बैंड या आसानी से अमेजोन या किसी और वेबसाइट पे मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. और उसको पहनने से वो कुछ चाइनीज़ एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है और उससे आपका जी घबराना और उल्टी होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है. अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस सिनेरियो में हम आपको फिर कुछ और मेडिसिन दे सकते हैं. बट उसके आगे अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो फिर आपको इन पर्सन आना पड़ेगा, बिकॉज हम आपसे हिस्ट्री लेके बातचीत करके ही हम आपको आगे की दवा दे सकते हैं. लेकिन जो प्रिकॉशंस मैंने अब तक बताए वो आप घर पे फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी एसिडिटी, वॉमिटिंग और जी घबराने को कंट्रोल कर सकेंगे. सो दैट आपको, और जी घबराना और उल्टी होना पहले 3 महीने में ज़्यादा होता है. जैसे ही आपके 12 वीक्स का स्कैन पूरा हो जाता है, आप रियलाइज़ करेंगे कि 13-14 वीक्स प्रेगनेंसी तक आपका जो जी घबराना है, नॉशिया वॉमिटिंग है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप कंफर्टेबल होने लग जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा घबराएं नहीं और अपने उल्टी और आने को या जी घबराने को अच्छे से मैनेज करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी
खुशीपूर्वक निकल सके। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रेगनेंसी से इतना परेशान हो जाएँ कि आपको लगने लगे कि हाँ, मुझे ये क्यों हो गया है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा थायराइड बढ़ा होता है, ये यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तब भी हम ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। अगर आपका वॉमिटिंग कर के बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वेट लॉस ठीक नहीं है अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। इसका मतलब आपको किसी और तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो उस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर से इंडिविजुअली डिस्कस करके, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करके फिर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लगेगा। अब क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो आता है। कॉन्स्टिपेशन होने का एक और कारण भी है कि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो उससे इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ जाता है। तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना होगा? पहली बात तो ये कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। अब आप कहेंगे जी घबराता है, पानी ज़्यादा कैसे पिएँ? तो पानी ज़्यादा पीने का तरीका ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा पिएँ, बार-बार पिएँ। अगर आपको ठंडा अच्छा नहीं लगता तो गुनगुना पिएँ सर्दी में। गर्मी में आप ठंडा पी लें। आप थोड़ा दूध अपना इंटेक बढ़ाएँ, कुछ नारियल पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, छाछ ले लें, सूप के फॉर्म में ले लें, पर कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर सर्दी में 2 ढाई लीटर और गर्मी में 3 साढ़े 3 लीटर पानी आप लें। थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार लेंगे तो आपको उससे उल्टी नहीं होगी, और पानी अगर आप पूरा पिएँगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि ये सब इतना पानी पीने के बाद भी हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो आपको रफ़ेज खाना चाहिए, मतलब डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर हमारे खाने में किसमें होता है? एक तो चोकर का आटा ले सकते हैं आप, दूसरा आप सलाड्स वगैरह खाएँ, जैसे कि खीरे, गाजर, टमाटर वगैरह हो गया, तो इनमें काफ़ी फाइबर होता है। इसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में भी काफ़ी फाइबर होता है। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी आपको कब्ज़ है, आपका पॉटी बहुत टाइट आता है, आपको रोज़ क्लियर नहीं होता है एब्डोमेन, स्टमक क्लियर नहीं होता है रोज़ाना, तो फिर आपको इसके अलावा कुछ हम सिरप वगैरह कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ये सिरप और दवाइयाँ ना लें, और अगर आपको डाइट और ये सब करने के बाद भी वॉक करने से भी कई बार पेट क्लियर हो जाता है, तो अगर आप वॉक करें, आप ठीक से हाई फाइबर डाइट लें, और अगर पानी आप अच्छे से पिएँ, लिक्विड्स अच्छे से लें, तो वो हाई चांस है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो फिर उसमें पाइल्स होने की संभावना होती है, और फिर पाइल्स हो जाता है तो फिर ब्लीडिंग भी होती है, पेन भी होता है, और बैठने में भी डिस्कम्फर्ट होता है। तो आगे हम पाइल्स पे आ जाते हैं। तो पाइल्स क्या होता है? इसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं। पाइल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के गुच्छे बन जाते हैं रेक्टम में, और जोर लगाने से वो बाहर आ जाते हैं, तो बाहर में सूजन होती है। कई बार जब पुरानी पाइल्स होते हैं तो उनके स्किन टैग्स भी सरफेस पे रह जाते हैं। पाइल्स की वजह से आपको बैठे रहने में भी असुविधा होती है, आपको लगेगा सारे टाइम कि रेक्टम में कुछ प्रेशर है, कुछ पेन है। कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स और बढ़ जाते हैं, जोर लगाने से वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ये भी एंश्योर करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अब अगर आपको पाइल्स हो गए हैं, तो अगेन फिर वही बात आती है कि आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। अगर आपके पास इंडियन सीट है तो उसको यूज़ करें, तो पॉटी अच्छे से खुलेगी और पाइल्स की संभावना कम रहेगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपको पाइल्स रहते हैं, तो अगर आपको पेन रहता है, तो टक पैड्स या विच हेज़ल पैड्स मिलते हैं। ये पैड्स आपको अगेन इंटरनेट पे आप ढूँढेंगे तो मिल जाएँगे आराम से, और इनको अगर आप लोकली अप्लाई करेंगे, तो उसको पहले प्राइवेट पार्ट्स को जहाँ पीछे पाइल्स हैं उसको क्लीन कर लीजिए। उसको टिश्यू से ड्राई करिए और वहाँ पे आप टक पैड लगा दीजिए। एक टक पैड एक बार यूज़ करके, और फिर उसको डिस्कार्ड करना होता है। आप 1 दिन के अंदर, अगर आपने सपोज़ आप रिपीटेडली वॉशरूम जा रहे हैं, तो भी 6-8 घंटे तो आप एक टक पैड को चला ही सकते हैं। इसी तरह से विच हेज़ल पैड्स भी होते हैं, तो इनसे काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप गर्म पानी के अंदर नमक डाल के, गुनगुने पानी में आप नमक डाल के भी बैठ सकते हैं। कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं, क्रीम्स होते हैं, जिनको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। और टिपिकली जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, जब क्रीम दिया जाता है तो आप सिर्फ सरफेस पे लगाते हैं। सरफेस पे लगाने से पाइल्स ठीक नहीं होते, उसके आगे एक बहुत बड़ी नोज़ल होती है, उस नोज़ल को अंदर इंसर्ट करके पीछे से, और अगर आप ट्यूब लगाएँगे और गुड क्वांटिटी में ट्यूब लगाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत आसानी से पाइल्स में कम्फर्ट आ गया और ठीक हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पाइल्स या बवासीर का ठीक से कंट्रोल करें, बिकॉज़ वो जब बेबी नीचे से डिलीवर होता है, जब निकलता है वेजाइना से, तो पाइल्स और प्रेस हो जाते हैं और पाइल्स बाहर आ जाते हैं, और उस टाइम ये ब्लीड कर सकते हैं और आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जनरली डिलीवरी के बाद पाइल्स बढ़ जाते हैं, तो केयर करें कि डिलीवरी के बाद भी आप पानी काफ़ी पिएँ, ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो और आपकी पाइल्स ना बढ़ें। फिर आप लोग सब शिकायत करते हैं कि मैं बहुत थक जाती हूँ। ये बात सही है कि नेचुरली आपकी बॉडी जो है अब 1.5 गुना काम कर रही है। आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, और बॉडी की बाकी फंक्शंस भी जो हैं वो डबली काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा वीकनेस और टायर्डनेस फील होता है। अब डबली काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डबल खाना शुरू कर दें। अगर डबल खाएँगे, डबल वेट हो जाएगा, तो आपको फटीग और बढ़ जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आप हेल्दी खाएँ,
टाइम से सोएं, टाइम से उठें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें और मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। सर्टेनली आपके एनर्जी लेवल्स प्री प्रेगनेंसी लेवल्स पे तो नहीं होंगे इस वक्त, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली एक्सरसाइज करेंगे और अपनी लाइफ को रेगुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई खास डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग जो है वो छुट्टी लेके आराम करना चाहते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपका काम ज़रूरत से ज़्यादा भारी भी नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपका सब कुछ ठीक है और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन अगर अलाउ करते हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू वर्किंग। आप काम छोड़ के घर ना बैठें, क्योंकि घर बैठ के और टायर्डनेस, सिकनेस और फटीग लगता है। प्रेगनेंसी के अंदर नींद भी बहुत आती है। अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो आप सो जाएं, क्योंकि पहले 3 महीने और लास्ट के फर्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी पेशेंट्स को नींद आती है। और अगर ये नींद आती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका स्लीप प्लान पूरा हो जाता है। क्योंकि आप रियलाइज करेंगे आगे जाके कि लास्ट 3 मंथ्स में तो नींद आती ही नहीं, और उस टाइम अगर नींद नहीं आती है तो कम से कम अगर पहले से आपका स्लीप प्लान पूरा होगा तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरू में भी नहीं सोए और लास्ट तक आते-आते नहीं सोए, तो फिर जब बच्चा पालने का टाइम आएगा, जब आप एट अ टाइम 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं सो पा रहे, तो आपकी हालत काफ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नींद आ रही है, तो आप नींद का मज़ा लें इस वक़्त, और अगले बाद के आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इतना अच्छे से सोने को ना मिले। तो अपने फटीग से घबराएँ नहीं, और अपने विटामिन्स जो प्रीनेटल्स हैं, अपना डाइट वगैरह रेगुलर लें, बिलीव करें, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस में विश्वास करें, एडिक्वेट स्लीप लें, रिलैक्स हो जाएँ। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो आप कुछ योगा, मेडिटेशन टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनें, तो आपको अच्छे से नींद आएगी। अब ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत कॉमन है कि जब आप अपनी छाती को या ब्रेस्ट को छूते हैं, तो आपको उनमें पेन महसूस होता है। ये बढ़े हुए हार्मोन्स की वजह से होता है, और ये अर्ली प्रेगनेंसी की एक निशानी भी है। अगर ऐसा है तो आप वेल फिटेड ब्रा पहनें, उसको लूज हैंगिंग ना रखें। और अगर आपको लगता है कि फिर उससे भी हो रहा है, तो आप उसको किसी तरह से, जैसे ब्रेस्ट पैड्स लगा के या स्मॉल टॉवल्स लगा के ब्रा के अंदर उसको अच्छे से ब्रेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस कम महसूस होगी। और लास्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आपके ब्रेस्ट में कोई लंप वगैरह है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर सिर्फ टेंडरनेस है और कुछ नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप सिंपल पैरासिटामॉल ले सकते हैं, इसकी गर्म पानी से या ठंडे पानी से, जैसे आपको सुविधा लगे मौसम के हिसाब से आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशान ना हो। ब्रेस्ट टेंडरनेस इसलिए भी होती है कि प्रेगनेंसी होने के बाद ब्रेस्ट अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसमें थोड़ा एनलार्जमेंट होता है, वाटर रिटेंशन होता है, डक फॉर्मेशन होता है, ग्लैंड फॉर्मेशन होता है। तो ये डेवलपमेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है, पर अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा फील होता है। इसके अलावा आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको वॉशरूम बार-बार जाना पड़ता है, आपको यूरिनेशन के लिए बार-बार जाना पड़ता है। इसका कारण ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर जैसे-जैसे यूट्रस बड़ा होता है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, वैसे ये अर्ली प्रेगनेंसी से ही चालू हो जाता है कि आपको बार-बार यूरिन आता है, क्योंकि यूट्रस अल्टीमेटली ब्लैडर पे कंप्रेस करता है, तो ब्लैडर को थोड़ा-सा यूरिन इकट्ठे होने के बाद ही प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और आपको यूरिन बार-बार करने की प्रॉब्लम लगती है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज़ रात को 2 या 3 बार भी उठ सकती हैं, तो ये नॉर्मल है। हालाँकि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा है, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपना शुगर लेवल चेक करें। इसके अलावा एक यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर भी करें, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन की भी निशानी होती है। तो अगर आपको शुगर नहीं है और यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, तो कोशिश करें कि आप यूरिन जब जाएँ तो कम से कम 200-250 एमएल यूरिन तो आना चाहिए। अगर आप 50-50 एमएल पे जा रहे हैं, तो आप हैबिचुअल, आपको आदत हो जाएगी इस तरह की, और उसके बाद ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो आपको काफ़ी इरिटेट करेगी आगे प्रेगनेंसी में। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अगर आपका यूरिन कल्चर वगैरह नॉर्मल है और आपका शुगर ठीक है, तो आप छोटे-मोटे प्रेशर पे एकदम से ना जाएँ उठ के, और देखें कि आप 2 ढाई घंटे तक का कम से कम यूरिन होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा लेग क्रैम्प्स बहुत कॉमन है। लेग क्रैम्प्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर वॉक्स करें और अपना कैल्शियम रेगुलरली लें। लेग की मसाज करवा सकते हैं। लेग के स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी है। टिपिकली हम जब स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम लेटे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने टोज़ को पॉइंट कर देते हैं, और टोज़ को पॉइंट करने से ये जो क्रैम्प्स है वो बढ़ जाते हैं। हमें टोज़ को पॉइंट नहीं करना है। इसका मतलब ये कि हमें अपने पंजों को इस तरह से नहीं करके अपनी तरफ खींचना है। अगर हम पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो हम टो को पॉइंट कर रहे हैं, और उससे हमारे काफ मसल स्ट्रेच होंगे, और हमारा अगर क्रैम्प आया भी है तो वो चला जाएगा। इसके अलावा आप किसी चेयर पे या स्टूल पे बैठ के और जैसे हील को नीचे थंप कर सकते हैं, मतलब ठप-ठप करेंगे अगर ज़मीन पे, तो उससे भी आपका जो क्रैम्प है वो ठीक हो सकता है। सो स्ट्रेच करें, हील पॉइंटेड से स्ट्रेच करें। कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं, अगर इनसे ठीक नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, तो कुछ मेडिसिन दे के आपके क्रैम्प्स को ठीक किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली अगर आप रेगुलर वॉक करेंगे, कैल्शियम लेंगे, और जब क्रैम्प आ जाएगा तो आप उसको हील को पॉइंट करेंगे और लेग मसाज करवाएँगे, रात को लेग्स थोड़ा एलिवेट करके सोएँगे और रेगुलर वॉक्स करेंगे, तो आपको क्रैम्प्स बहुत कम आएँगे। एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। इसका कारण ये है कि जो हमारा ईसोफेगस है वो नीचे जाके स्टमक से कनेक्ट होता है, तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। ये वाल्व प्रेगनेंसी में लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से खाना
उल्टा होके आता है, और जब खाना उल्टा होके आता है तो फिर हमें जो है हमारा ये ईसोफेगस जल जाता है और हमें इससे एसिडिटी महसूस होती है। तो अगर हमें एसिडिटी महसूस होती है तो हम इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि हम ऐसा खाना ना खाएँ जिससे हमें एसिडिटी हो, जैसे खाली पेट चाय ना पिएँ, थोड़ा ठंडा दूध पिएँ, बहुत ज़्यादा खट्टे फल एक साथ ना खाएँ, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ एक बार में, थोड़ा-थोड़ा खाएँ, बार-बार खाएँ, और खाना खाते ही लेटें नहीं, थोड़ा बैठे रहें, और जो भी चीज़ों से एसिडिटी होती है उन सबको अवॉइड करें। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है तो आप ठंडा दूध पी के देखें। कुछ सिरप भी लिए जा सकते हैं, कुछ टैबलेट्स भी दी जा सकती हैं। इन सब चीज़ों से हाई चांस है कि आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। अगर आपको पहले से एसिडिटी है तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा अपनी डाइट में। बहुत मीठा, बहुत स्पाइसी, बहुत खट्टा खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। और मैं देखती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप लोग अचार, चटनी, पापड़ वगैरह ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। फिर बात आई बैकएक की। अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका स्पाइन पहले ऐसे था, वो अब ज़्यादा कर्व्ड हो गया है। अब ज़्यादा कर्व्ड होने से क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्पाइन पे नीचे बहुत लोड आता है, क्योंकि इधर प्रेग्नेंट यूट्रस है, तो स्पाइन इतना कर्व हो गया है। इसका क्या तरीका है कि स्पाइन पे लोड ना आए? उसमें ये है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होगा और बैक की एक्सरसाइज करनी होगी। कैट एंड कैमल एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप शोल्डर एक्सरसाइजेस भी करें, ताकि ब्रेस्ट फीड में प्रॉब्लम नहीं आए। डिज़ीनेस काफ़ी कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो अगर आपको लगता है कि आप डिज़ी हो जाते हैं सडनली उठने से, इसका मतलब आपका प्रेशर लो हो जाता है। तो इस सिनेरियो में, जैसे अगर आप पहले तो सीधा ना लेटें, साइड में करवट लेके सोने की कोशिश करें। आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में सो सकते हैं। जब उसके बाद में जब आपका उठने का टाइम आएगा, तो आप पहले उठ के बेड पे बैठ जाएँ। तो आप कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए बैठे रहें, फिर आप खड़े हो जाएँ, फिर आप कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहें, फिर चलना शुरू करेंगे। तो आपका बीपी एडजस्ट होगा और आपको चक्कर नहीं आएँगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको चक्कर आएँ, तो अपना बीपी और शुगर ज़रूर चेक करवाएँ। और फाइनली स्वेलिंग। जितना ज़्यादा वेट गेन होता है, उतना ज़्यादा स्वेलिंग आता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर आ जाता है, उनको भी स्वेलिंग आता है। तो अगर आपका स्वेलिंग ज़्यादा आता है, तो आप उसमें ब्लड प्रेशर चेक करें, और रात को अपने लेग्स एलिवेट कर, मतलब उठा के सोएँ, थोड़ा ऊँचे रखें अपनी बॉडी से, ताकि आपका जो फ्लूइड है लेग से वो निकल जाए, और नमक कम खाएँ। अब कम नमक का खाना अगर टेस्टी नहीं लगता है, तो आप थोड़ा नींबू डाल लें, कुछ और खटाई डाल लें, ताकि आपको खाना स्वाद लगे और आप खाना खा सकें। तो यही एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि टिपिकली आप लोगों को होती है। इसके अलावा जनरल चेकअप में थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट मैनेजमेंट, ये सब होता है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी स्वेलिंग कम करने के लिए, कि फर्स्ट 3 मंथ्स आप जो है वेट गेन करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, और मिडल 3 मंथ्स के अंदर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलो गेन करें, और बाकी का बचा हुआ 5 किलो लास्ट के 3 मंथ्स में आना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो टोटल आप प्रेगनेंसी में 10-12 किलो गेन करेंगे, जो कि आप आसानी से डिलीवरी के बाद शेड कर सकेंगे। लेकिन होता ये है कि घर वाले लाड़ प्यार में लड्डू और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें खिला देते हैं, और कहते हैं आप तो प्रेग्नेंट हो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, एंड उससे इतना वेट गेन हो जाता है कि हर लड़की एक आंटी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो जो है, वो जो फैट है वो कहीं जाता नहीं, वो टिका रहता है। तो अब हम ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस रेडी हैं, तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, एंड हम लोग कर सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आ गया कि कैफ़ीन पी सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी के अंदर आप टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं घर के बने हुए, और छाछ ले सकते हैं, कभी-कभी नारियल पानी भी ले सकते हैं। बट सर्टेनली जो टी होती है उसमें कैफ़ीन बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन कॉफ़ी पर से ना लें, कोक अवॉइड करें, तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपका एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगा, आपका माइंड भी स्टिमुलेट हो जाएगा, तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, और इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो एज़ सच कैफ़ीन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। कौन-सा खाना प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए? हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कौन-सा खाना प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि आपको पपाया, चाइनीज़, स्पाइसी, बाहर का, और कॉफ़ी, और शुगरी ड्रिंक्स, और पपाया हो गया, और ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। काजू किशमिश वगैरह भी नहीं खानी चाहिए, कच्चे पत्ते नहीं खाने चाहिए आपको। आपको खाना क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, दूध ले लीजिए, दही लीजिए, ताज़ी सब्ज़ी खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, बादाम, पिस्ता, अखरोट खाइए। चपाती दिन की 2-3 काफ़ी होती है, अनलेस आप बहुत ही पतली हों और आपका बीएमआर बहुत अच्छा हो। तो अगर आप इस तरह से खाएँगे, अगर आप नॉन-वेज खाती हैं, तो आप एग्स खा सकते हैं। आप लीन मीट जैसे कि चिकन, फिश हो गया, ये आप खा सकते हैं। तो इस तरह का खाना जो है, वो प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। बताएँ, और कोई सवाल है अगर आपके तो?
प्रेगनेंसी में क्या दवाई ले सकते हैं? सो प्रेगनेंसी के अंदर दवा की एक लिस्ट आपको नेट में मिल जाएगी, बट कॉमनली हेडेक वगैरह के लिए हम पैरासिटामॉल देते हैं, इसी तरह से बैकएक वगैरह के लिए। लेकिन कोई भी मेडिसिन हम कॉमनली इस तरह से आपको नेट में नहीं बता सकते। इसका कारण ये है कि अगर अगर आपका कोई लिवर में प्रॉब्लम है या आपको किसी दवा से एलर्जी है, तो सर्टेनली आप वो दवा नहीं खा सकते। तो जो भी दवा आप खाएँ, वो अपने डॉक्टर से पूछ के खाएँ। पर कॉमनली कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर्स टिपिकली नहीं खा सकते प्रेगनेंसी में, कुछ एंटी एलर्जिक्स हैं, ज़्यादातर मेडिसिन अनसेफ होती हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से नहीं लें, बट येस फॉलिक एसिड सबको खाना चाहिए, और 3 महीने पूरे होने पे आयरन, कैल्शियम, और अगर आपने विटामिन डी भी बहुत दिन से नहीं खाया तो खाना चाहिए। और डीएचए के सप्लीमेंट्स जो हैं, वो अगर आपने नहीं लिए हैं तो वो आपको रेगुलरली लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आपने विटामिन डी पहले से खाया है, तो आप विटामिन डी लेवल्स चेक करके फिर खा सकते हैं। अगर आपका आयरन भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कभी-कभी थैलेसेमिक्स में होता है, तो आपको आयरन नहीं खाना चाहिए। तो हम एक स्टैंडर्ड एडवाइस देते हैं जो कि टेलर्ड नहीं है। टेलर्ड एडवाइस तो जब आप इन पर्सन बैठते हैं और एक आमने-सामने बात होती है कि आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको थैलेसीमिया तो नहीं है, आपके सीरम आयरन लेवल्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे आयरन देते हैं। तो सिमिलरली हम आपको पूछ के, आपकी हिस्ट्री लेके उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। Artificial sweeteners, sugar substitutes, should I avoid them? How can they harm my baby? Well, it is absolutely a no. No artificial sweeteners should be taken in pregnancy. They can, because ultimately there are chemicals, though there are some natural sweeteners available in the name of stevia. Some people consider them safe, but my recommendation is it is best to control, or if you are not diabetic, take in very small quantities some kind of sugar, but it is best to avoid artificial sweeteners because eventually they also disturb the insulin metabolism. So please avoid. And not much have been studied, but they are considered a no in pregnancy. So please do not use any kind of artificial sweeteners. Good is a better sweetener compared to sugar, and honey, pure honey is a better sweetener if you're not diabetic, and you may take it in a small quantity so that you don't put on weight. But natural fruit sugars should suffice for a sweet tooth, and my recommendation would be to avoid any kind of sweetness, including sugars and good and honey. Can I travel during pregnancy? So majority of the women can travel during pregnancy. There are certain women who cannot travel during pregnancy, like those who have low-lying placenta or the cervix is short, they have signs of preterm labor. Sometimes if they have multiple or more pregnancies like triplets or something, or if they are having bleeding in pregnancy, or they have been not allowed by doctor to travel. So most of the women can travel, but typically till the time the first scan is done, we say don't travel because we don't know where the pregnancy is located, what is the status. And all those who have miscarried their babies on several occasions, or those who have preterm labor, are advised not to travel. Suppose they had a preterm labor at 32 weeks, so we advise them not to travel after 26, 28 weeks. So it is something like, a very, very individual thing. So it is, if somebody is not diabetic, can certainly eat sugars without any harm. But if somebody is diabetic, cannot take sugar. Similarly, somebody is not having any kind of complication, can travel through the pregnancy at least till 30 to 34 weeks. But if somebody is having any kind of illnesses or problems, then they should not be traveling. So standard advice is at least do the first scan if it is good. But a better advice would be, first 3 months and last 3 months you avoid traveling, and most of the travel should be restricted to the middle 3 months. But yes, local travel, like if you want to go from Gurgaon to Delhi or Noida or Ghaziabad or Faridabad, so that kind of travel can be undertaken. Next question, please. What type of exercises can I do during pregnancy? So, well, it all depends on your pre-pregnancy fitness. If you were a marathon runner and you were running 20 kilometers, you can still run 10 kilometers. If you were a jogger, certainly jogging is not recommended. So, low impact exercises, that means jogging, horse riding, skating, bungee jumping, those kind of exercises are a big no. Swimming is the best exercise, but cannot be done around the year. So simple walks, brisk walks, any exercise which is not putting much pressure on the abdomen can be undertaken. So there are some pregnancy yogas, ball exercise, and if you're good, you can do duck walk if everything is okay, because that will open up your pelvis. If you continue doing it throughout the pregnancy, you have much higher chances of normal delivery. Certainly, normal delivery depends on better pelvis, and the exercises have to be done through the life. But at least the 6-7 months of pregnancy you should be doing those exercises. Now, what happens is कि आप लोग शुरू से एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपकी मदर लॉ कहती है कि 9th मंथ में करना, और जब 9th मंथ में आप एक्सरसाइज करना
करना चाहते हैं, तो आपने क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी रेस्ट किया तो आपसे नीचे बैठा ही नहीं जाता, तो आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके वैसे ही घट जाते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कैन बी डन except the abdominal exercises. Simple weightlifting can also be done. Jogging should be avoided. Brisk walk is okay, and do not put any kind of pressure on your tummy. So those kind of exercises you should do. Next question, please. Can I color my hair during pregnancy? Yes, I know most of you like to color your hair during pregnancy. During COVID times, it is the best advice not to go to salon. If you're doing it on your own, for the first 3 months, you should not be doing color if possible. But if at all you need to do, you should be avoiding touching the color on the scalp. That means a little bit of roots will remain behind. तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रूट छोड़ के बाकी बालों पे आप कलर लगाएं. बट वही है कि कलर का फ्यूम नोज में जाएगा, फिर वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, वो कितना बेबी पे इम्पैक्ट करेगा पता नहीं. जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करें या मिनिमाइज करें, या फिर आप नेचुरल कलर्स यूज करें, बट सर्टनली रूट्स आप अवॉइड करें. बट अगर आप नेचुरल कलर यूज करें तो उसमें कोई बात नहीं है. सो ये आपका आंसर है हेयर कलर के लिए. करें तो आप घर पे करें, बाहर ना जाएं, सैलून ना जाएं. अभी कोविड बहुत फैल गया है, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा है इस बार. कितना वेट गेन करना चाहिए मुझे प्रेगनेंसी में, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन. सो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको गेन करना ही नहीं चाहिए. अगर 1-2 kg लॉस हो जाता है तो उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है. मिडिल 20 वीक्स प्रेगनेंसी तक अगर आप 3 किलो गेन करते हैं तो वो काफ़ी है. दैट मीन्स 3 मंथ से लेके 4.5 मंथ्स तक, ये 1.5-2 जो महीना है, इसमें अगर 3 किलो बढ़ता है तो ठीक है. उसके बाद 1 से 1.5 kg पर महीना बढ़ा है अगले 3 महीने, सो उससे आपका 32 वीक्स हो गया, और लास्ट में आपका 2-2 किलो बढ़ेगा. अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका टोटल इन ऑल 10-11 बढ़ गया. लेकिन अगर आप इससे ज्यादा वेट गेन करेंगे तो फिर आपका वेट गेन कितना भी हो सकता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, कोई लिमिट नहीं है. आप 3 फिगर्स को भी क्रॉस कर सकते हैं. काफ़ी पेशेंट है 110, 115 किलोज भी हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट अच्छे से कंट्रोल करें, और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं. ऐसा ना सोचें कि मुझे 2 के लिए खाना है, आप सिर्फ अपने लिए खाएं. बेबी जो होता है, कहना नहीं चाहिए पर ये फैक्ट है कि बेबी पैरासाइट की तरह से है. आपका जो भी प्रोटीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन जो भी चाहिए वो बेबी ले लेगा. उसके बाद आपको अपने ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपको क्या डेफिशिएंसीज, और आप उन्हें पूरा करें. लेकिन आप ये ना सोचें कि जो वेट आप प्रेगनेंसी में गेन करेंगे वो पक्का लूज हो जाएगा. अगर आप बहुत ही मेहनत करेंगे तो हाँ शायद लॉस हो जाएगा, बट अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया फिनिश. अब आपके कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं तो वी आर फाइन, बताएं. सो एट द एंड ऑफ द डे अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इंजॉय करें, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ. छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स को इग्नोर करें. लेकिन अगर कोई भी वार्निंग साइंस है, अगर आपको लगता है किसी भी वक्त पेट में दर्द हो रहा है, या आपको लगता है कि वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है, या आपको लग रहा है कि नीचे से बदबू आ रही है, या ब्लड निकल रहा है, या आपको लगता है एक बार बेबी हिलने लग गया 24-26 वीक्स के बाद में, अगर बेबी नहीं हिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अरे अभी सब सो रहे हैं, मैं कल सुबह जाती हूँ हॉस्पिटल, कल बताती हूँ, ये नहीं. क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो 24 घंटे खुले हैं. ये चीज़ें कई बार बहुत अर्जेंट हो सकती है. अगर आपको 3 घंटे तक बच्चा का मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके बच्चे की धड़कन चेक करवाएं, और चेक करें कि बेबी आपका बिल्कुल ठीक है. सो इन चीज़ों का ध्यान रखें. अपने प्रेगनेंसी में बहुत खुश रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, इधर उधर से ना सुने, अपने डॉक्टर से पूछें. क्योंकि जो चीज़ आपकी मदर या नानी या भाभी के लिए फिट थी, हो सकता है वो आपके लिए फिट ना हो. तो आपकी जो भी इंडिविजुअल नीड्स है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और अपने लिए एक टेलर्ड प्लान बनाएं और उसको फॉलो करें. So remain happy, remain healthy, avoid COVID, and I hope that you all have a very successful and healthy pregnancy, which is followed by a normal delivery and a very good lactation. Thank you.